मैम अभी फाइल नहीं रिसीव हुई। बेटा आवाज आ रही? हेलो, यस मैम। am I audible? Hello. Okay. यस मैम। So today I am going glass transition temperature. And glass transition temperature plays a very important role in the field of the what is glass transition temperature. There are some other properties like the states of the polymers. What are the states of polymer, and if, or you can say in what state or in which state the polymer exists. So a study of these factors is important before starting the glass transition temperature. Actually, what is the glass transition temperature? Glass transition temperature क्या होता है? Suppose polymer is in the form of a solid. When you give temperature, after certain time that solid will convert to the soft state. यानी कि solid से वो melt state या जो है वो melt means that will start to melt. The temperature at which a solid polymer starts to melt. तो ये क्या हो रहा है? फेज का ट्रांजिशन. जैसे ही मेल्ट होगा तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा. ठीक है. तो ट्रांजिशन, द टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन ऑफ ए पॉलीमर takes place from glassy state to rubbery state is called as the glass transition temperature. जैसे कि एक रबर की ऑर्डिनरी बॉल अगर लें, है ना, तो दैट रबर बॉल इफ cooled below -70 degree Celsius, then it becomes so hard and brittle that it will break into pieces like a glass ball when it fall on a hard surface. है ना, जैसे ही अगर रबर की बॉल को इफ यू कीप एट अ टेम्परेचर ऑफ -70 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद व्हेन यू थ्रो इट, जैसे किसी सरफेस से कोलाइड होएगा, इट विल ब्रेक लाइक अ ग्लास. जैसे ग्लास टूटता है ना, एकदम चकनाचूर हो जाता है, तो दिस बॉल विल ब्रेक लाइक अ ग्लास. यानी कि -70 डिग्री सेल्सियस पे दिस ball or this polymer or this rubber exists in a glassy state, and as you increase the temperature, है ना, तो रब किस स्टेट में आ जाता है? इट बिकम्स रबर लाइक. तो एक टेम्परेचर बाउंड्री जैसे ही उसको क्रॉस करते ही इट एंटर्स फ्रॉम ग्लासी स्टेट टू द रबरी स्टेट. यानी ये ग्लासी स्टेट में इट इज अ ब्रिटल प्लास्टिक, and in rubbery state it becomes tough plastic and rubber. ब्रिटल मतलब जो तुरंत टूट जाता है, ब्रेकेबल, easily breakable. So this temperature at which this transition takes place is called as the glass transition temperature. अब उससे ज्यादा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट टू फ्लो. ग्लासी स्टेट, रबरी स्टेट, उसके बाद जो है विस्को फ्लूइड स्टेट. तो अगर आप रबर की बॉल को -70 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखते हो, देन इट बिकम्स लाइक अ ग्लास. उसके ऊपर रबरी स्टेट, हार्ड रबर. और ज्यादा टेम्परेचर देती हूँ तो क्या होता है? फ्लूइड की तरह फ्लो करने लगता है, विस्कस फ्लूइड. तो at the temperature at which the transition of a polymer takes place from the rubbery to the viscofluid state, that is called the melt temperature. The glass transition इसको बोलते हैं flow temperature. तो TF, flow temperature is represented by TF, and glass transition temperature is represented by TG, capital T and small g in जो है वो सबस्क्रिप्ट में. इसी तरह से फ्लो टेम्परेचर टी. तो टीजी क्या है? टीजी इज अ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन ऑफ एनी पॉलीमर टेक प्लेस फ्रॉम ग्लासी स्टेट टू द रबरी स्टेट.
and flow. TF is the flow temperature, TF is the flow temperature, and flow temperature is the temperature at which transition from a rubbery to the viscofluid state takes place of the polymer. Now, to understand the concept of glassy solid and glass transition, ठीक है, कि what is glassy solids क्या है and what is the glass transition. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे the phases of low and high molecular weight substances, states of aggregation. What is the state of aggregation and the phases of the low and high molecular weight substances? तो सबसे पहले पीडीएफ आ गया बेटा, अगर आ गया हो तो यू कैन शेयर. The first of all come to the states of aggregation. So we'll start with the low molecular weight. अभी पॉलीमर की बात नहीं कर रहे हैं. We'll start with the low molecular weight compound. देखिए जो low molecular weight compounds होते हैं, they exist in solid, liquid and gases. And polymer exists only as a solid and liquid, but never exist as a gas phase. है ना, क्यों गैस फेज में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते पॉलीमर? क्योंकि अपनी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले उनमें डिग्रेडेशन. तो गैसियस फेज के लिए टेम्परेचर आप इतना देना पड़ता है कि बॉइलिंग हो पाए लिक्विड की, तभी जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे. लेकिन जो पॉलीमर्स होते हैं वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले डिग्रेड हो जाते हैं. इसलिए the polymer only exists in the solid phase and liquid. ठीक है, अब लो मॉलिक्यूलर वेट से अगर स्टार्ट करते हैं हम, तो लो मॉलिक्यूलर वेट में सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड या क्रिस्टलाइन की. ठीक है, कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं sorry for disturbance. So the molecules in the crystal lattice in a certain equilibrium positions, they fix होते हैं, and from here it moves about only a little in a vibrational mode. यानी crystal lattice में position of the molecule is fixed. केवल वहां पर वाइब्रेशन पॉसिबल है, मूव नहीं कर सकते. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने लैटिस को छोड़कर, स्पेस को छोड़ के बाहर नहीं आते. ओनली द वाइब्रेशन इज पॉसिबल. तो मींस देयर इज नो मॉलिक्यूलर मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड. यानी कि जब आप टेम्परेचर देते हो तो मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रॉम ट्रांसलेशनल मोशन. ओवरऑल ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? The overall motion of a molecule in all 3D, मतलब all 3 axes, that is the translational motion. लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट. तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिस ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट अकर. इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे कि एक ऑडिटोरियम में एक वेल डिसिप्लिन ऑडियंस बैठी हुई है, and this audience do not move from one place to other place. They do not leave their seat, but they can move their hands and legs. ठीक है, गर्दन घुमा सकते हैं, हाथ पैर चला सकते हैं, बट अपनी सीट छोड़ के नहीं उठ रहे. तो ये एक ऑडियंस को अगर आप जो है एक हॉल को जो है वो कंपेयर करें, अगर जहां पर सारी ऑडियंस बैठी हुई है किसी ऑडिटोरियम में, लेकिन कोई भी अपनी सीट को छोड़ के नहीं खड़ा होता है, अपनी सीट पर ही केवल वो हाथ पैर हिलाएंगे, मतलब जो मूवमेंट है बॉडी पार्ट्स के, दैट विल अकर, बट दे डू नॉट लीव देयर सीट. तो ये मोशन हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें ऐसे ही जो है केवल वाइब्रेशंस आर पॉसिबल. यानी कि वो मॉलिक्यूल्स
Crystalline solids are the molecules in which crystalline solids are the substances in which the molecules are at fixed positions in a crystal lattice, and there is no possibility of Brownian movement in a crystalline solid. ठीक है. अब all so crystalline solid क्यों है? The molecules occupy different positions within the crystal lattice, and this well-defined arrangement is repeated several times in all the three dimensions of the crystal to give rise what is called the long range order of the crystalline solid. Means solid attain the long range order. Long range order, what is the long range order? It is the well-defined arrangement of the molecule in the crystal lattice. And now see what happens to this system when an external force is applied. Because every molecule in the solid are in a rigid state. And naturally the planes formed by these molecules within the solid are also rigid and inflexible. तो अब जब ऐसे सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करते हैं, जब फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स केवल वाइब्रेशन पॉसिबल होगा, बट दे विल नॉट लीव देयर पोजीशन. So a low molecular weight crystalline solid can be defined as in terms of the number one, three factors. क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तीन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. नंबर वन इज द पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इनसाइड द क्रिस्टल. नंबर टू, द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. जैसी ज्योमेट्री होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे. एंड द रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने, जैसे आप सॉलिड लिक्विड गैसेस को कैसे डिफाइन करते थे? सॉलिड्स आर डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. Liquids are having definite volume but indefinite shape. And gases indefinite volume and indefinite shape. But now you can explain the crystalline solid. You can define the crystalline solid on the basis of three terms. First is the position and condition of the individual molecule inside the crystal. That is the fixed position hogi. Geometry of the crystal lattice, that will define the bonding between the atoms or molecules. And third is the response to an external force. When your external force is applied, so only the vibration is possible. No Brownian moment. Next आता है कि what happens when this system is kept in a high temperature environment. जब इसी सिस्टम को हम कहां पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट में रखते हैं. As you increase the temperature, more and more kinetic energy is added to the system, and individual molecules start vibrating more and more vigorously. ठीक है. जैसे ही टेम्परेचर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है. मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है वो विगरसली स्टार्ट टू वाइब्रेट. और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर वाइब्रेशनल मोशन जो होता है वो एनर्जी बैरियर, जिसने कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बाइंड करके रखा हुआ है,
उस एनर्जी बैरियर को ये वाइब्रेशनल मोशन जो है वो इफिशिएंटली क्रॉस कर जाता है ना। एक एनर्जी जिसकी वजह से ऑल द मॉलिक्यूल्स आर बाइंड, फिक्स पोजीशन पर है। तो जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इतनी बढ़ जाएगी टेम्परेचर देने पे कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगी, तो क्या होगा, द ब्राउनियन मूवमेंट विल स्टार्ट, यानी कि मॉलिक्यूल एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो द ब्राउनियन मूवमेंट बिकम्स मोर विगरस। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, जैसे ऑडियंस को आपने टी, पहले हमने सॉलिड को किससे कंपेयर किया, वेल डिसिप्लिन ऑडियंस से। अब ऑडियंस को क्या आपने टी ब्रेक जैसे ही दिया, टी ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, सब ऑडियंस अपने अपने सीट से उठे और किसके लिए चले गए, फॉर हैविंग टी। इट मीन्स द लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज लॉस्ट, देयर इज नो वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ द molecular arrangement. Now if you apply an external force, the system can no longer transfer the stress. क्या करेगा, केवल फ्लो करेगा। दिस स्टेट इज कॉल्ड द लिक्विड स्टेट। और सॉलिड में जैसे फोर्स अप्लाई देते हो तो क्या होता है, स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। यहाँ पर ट्रांसफर का कोई चांस ही नहीं है, स्ट्रेस ट्रांसफर का, केवल फ्लोइंग। और स्ट्रेस देने पे क्या करेगा, लिक्विड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट क्या हुई, सॉलिड, ये लो मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, सॉलिड स्टेट कैन बी explained on the basis of the, or you can say the solid state of low molecular weight is the presence of long range order, or the presence of well defined arrangement of molecules in crystal lattice. और लिक्विड क्या है, मीन्स, और सॉलिड में क्या है, तो देयर इज नो ब्राउनियन मूवमेंट। लिक्विड में क्या है, विथ ब्राउनियन मूवमेंट, यानी कि low molecular weight substances in the condensed state, there is possibility of two state of affairs. पहला क्या है, first without Brownian movement, but with long range order, when stress transfer phenomenon is possible, this is called the solid state. तो solid state को क्या बोलेंगे हम, the state without Brownian movement but with long range order when stress transfer phenomenon is possible, this state is called solid. और दूसरी स्टेट क्या है, the state with Brownian movement without long range order and with energy dissipation, जहां पर एनर्जी क्या है, डिसिपेट होती है, is called the liquid state. और जो टेम्परेचर एट विच द चेंज ऑफ स्टेट अकर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग टेम्परेचर। सॉरी, तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच चेंजेस ऑफ स्टेट अकर, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम। तो दोनों चीजें बेटा आपको क्लियर हो गई, व्हाट इज सॉलिड स्टेट and what is liquid state in low molecular weight compounds. Solid state is the without Brownian movement but with long range order and stress transfer phenomenon. Liquid state क्या है, with Brownian movement, without long range order and with energy dissipation. The state is called liquid state. And the temperature at which the change of state occur is called the melting point. ये तो हो गया लो मॉलिक्यूलर वेट में। अब अगर हम एक पॉलीमर ले लें जैसे पॉलीथाइलिन, ठीक है, जो पॉलीथाइलिन है इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इट एग्जिबिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर, जबकि हाई टेम्परेचर पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट हो जाती है लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड से।
क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि जब हाई मॉलिक्यूलर वेट पे क्या होता है, हाईली विस्कस सोल्यूशन में आता है, मेल्ट ना होने की बजाय फ्लो करने लगता है. So what is the difference between the low molecular weight and polythene or polymer compound? तो देखिए जो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस हैं, those substances on the temperature either move apart as a whole or do not move at all. या तो पूरे सब्सटेंस जो है वो मूव करेगा या तो पूरा सब्सटेंस नहीं मूव करेगा. जब पूरा मूव करेगा ब्राउनियन मूवमेंट होगा टेम्परेचर देने पे, देन इट इज लिक्विड स्टेट, और जब वो नहीं मूव करेगा तब देन इट इज अ सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो यही दो स्टेट्स है. बट इन केस ऑफ पॉलीमर, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जो चेन सेगमेंट्स होते हैं ना, पॉलीमर क्या है, इट इज अ चेन लाइक स्ट्रक्चर. एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, पॉलीमर की चेन है. तो पहले क्या होंगी, चेन्स मोबिलाइज हो जाएंगी. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, जो लोकलाइज यूनिट्स हैं, चेन सेगमेंट्स हैं within long chain molecules are first mobilized before the whole molecule start moving. जैसे बड़ा सा थ्रेड एक ले लो, एक हाथ से दूसरा बच्चा पकड़े, दो लोग कोई दूर जाके पकड़ लो, एक तरफ से मूव करना स्टार्ट करो तो पहले पूरा बाद में मूव करेगा, पहले क्या होगा, एक तरफ से ही मूव करेगा, धीरे धीरे मूवमेंट पूरे में जाएगा. तो एक सेगमेंट जो होते हैं वो पहले क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसके बाद पूरा पॉलीमराइज वो जो है वो मूव करेगा. तो होता क्या है कि in some parts within the molecule there is a considerable localized motion but not in other parts of same molecule. किसी एक पार्ट में तो आपका क्या होगा, मोशन होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में पता चला वो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है. ठीक है, अब इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, ये एक ऑडियंस थी जो कि जिसकी सीट जो है वो आगे पीछे हो सकती है चेयर, दे कैन मूव देयर लेग्स, हैंड्स, heads, they can sit and stand on their seat but they cannot leave their seat. अपनी सीट को छोड़ेंगे नहीं, अपनी सीट पे उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हाथ पैर फैला सकते हैं, दाएं बाएं घूम सकते हैं. ठीक है, सीट को छोड़ के खड़े भी हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे. इस तरह की ऑडियंस से कंपेयर करें, लेकिन अपनी सीट को छोड़ के नहीं जाएंगे. तो ये कौन सी स्टेट हुई, बीच वाली एक स्टेट हुई, जहां पे ब्राउनियन मूवमेंट सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट. जैसे कि एक बड़ा सा जो होता है ना स्नेक, तो वो केवल अपनी पूंछ को देखिए विग्रसली हिलाता है और आगे के सोता है कांस्टेंट रहता है. तो इसी तरह से एक जगह कहीं पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और बाकी जो है वो किसी एक पार्ट में बाकी जो पूरा सब्सटेंस है वो मूव नहीं कर रहा है. तो अब देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. टू टाइप्स ऑफ मोशन एग्जिबिटेड विद इन द पॉलीमरिक मटेरियल. पहला तो क्या है, द सेगमेंटल मोशन, जहां पर लोकलाइज मोबिलिटी ऑफ द सेगमेंट्स. देखिए पॉलीमर चेन एक दूसरे से अटैच्ड है, एक चेन मूव कर रही है, मान लीजिए 20 चेन अटैच है, दो चेन मूव कर रही है, 8 मूव ही नहीं कर रही है. तो या तो इसमें क्या हो गया, सेगमेंटल मोशन, या तो दूसरा जो है द टोटल मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मोशन. या तो लोकलाइज मोबिलिटी ऑफ सेगमेंट होगी और द टोटल मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल. तो व्हेन there is only the mobility of the segment, it is called the segmental motion, and when the whole molecule moves it is called the molecular motion. Means पूरा molecule जो है वो move करता है. Means there are two types of Brownian movement in a polymeric material. पहला क्या है, internal और micro Brownian movement, that is called IBM, internal Brownian movement. इसको क्या बोलता है, that is related to the segmental motion. And second is the external or macro Brownian movement, EBM, describing the molecular motion.
So as the temperature of the polymeric material increased, तो सबसे पहले क्या होगा, internal Brownian movement, IBM, that describes the segmental motion. And as the temperature increased, or only at a higher temperature, the external Brownian movement will also start. यानी कि जहां कहीं पर भी EBM होगा, जिस पॉलीमर में एक्सटर्नल Brownian मूवमेंट होगा, दैट विल बी ऑलवेज अलोंग विद द IBM, क्योंकि लो टेम्परेचर पे IBM स्टार्ट होगा, देन EBM. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर व्हेन बोथ द Brownian मूवमेंट्स आर एक्टिवेटेड, द इंडिविजुअल पॉलीमर चेन स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट and will be a flow of material instead of a stress transfer. तो जब जहां पर आपके दोनों मूवमेंट होंगे, पूरा Brownian मूवमेंट IBM प्लस EBM होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. दिस स्टेट कंपेयर्स विद द लिक्विड स्टेट ऑफ लो मॉलिक्यूलर स्टेट सब्सटेंसेस. इस स्टेट को किससे कंपेयर कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट से. बट ओनली द डिफरेंस क्या है, द पॉलीमरिक मटेरियल्स on account of their large molecule size are very highly viscous liquids at such temperatures. ठीक है, so with the polymers, what happens, the solid state of low molecular weight substances at one side of the temperature scale where the two Brownian movements are frozen, we also have something corresponding to the liquid state at the other side of temperature scale when both the Brownian movements are activated. यानी कि दो polymers solid state में कब होगा, when both the Brownian movements are frozen, there is no IBM, there is no EBM. Both Brownian movements are means a segmental motion and molecular, all the motions are frozen, then the polymer is said to be as a solid state, said to be exist in a solid state. या फिर जिसमें दोनों मूवमेंट हो रहे हैं, IBM एंड EBM बोथ मूवमेंट्स आर अकरिंग, दैट इज अ लिक्विड स्टेट. बट इन दोनों के बीच में देयर इज वन मोर स्टेट. कौन सी, जहां पर या तो केवल IBM फ्रोजन, मतलब IBM हो रहा और EBM नहीं हो रहा है ना. एक ऐसी स्टेट जहां पर सेगमेंटल मोशन हो रहा है बट EBM नहीं हो रहा है. एक स्टेट की पॉसिबिलिटी ये भी है. अभी तो हमने किसकी बात करी, when all means when these both Brownian movement IBM and EBM means segmental motion and molecular motion are frozen, it is solid. When IBM EBM are allowed to happen, are taking place, then the liquid state. but इन दोनों के बीच की जो intermediate stage where one Brownian movement is activated and the other is frozen, then in case of polymer there is an intermediate stage where the localized mobility is activated but the overall mobility is not. यानी कि IBM जो है वो एक्टिवेट होगा बट EBM is not. ठीक है, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, the combination of this state is actually the combination of the liquid and solid state and it is called the rubbery state. इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, रबर. रबर जो होता है वो सॉफ्ट, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है. जहां पर कि IBM is possible and EBM is frozen. EBM से क्या होगा, जब EBM एक्टिवेट हो जाएगा तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो when the stress, more stress or temperature is applied to the rubbery state, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, it exhibits the properties or a viscous fluid or a solid undergoes to the viscoelastic deformation. यानी कि रबरी स्टेट से जब किसमें चला जाता है, लिक्विड में आपका, then this called the viscoelastic deformation.
So it is all about the states of aggregation. Now, I think it is clear to everyone that polymer exists in the solid, liquid, or एक उन दोनों के बीच की state, intermediate state, that is a rubbery state. So the polymer solids are where the on applying of the stress or temperature, there is Brownian movement. Both Brownian movements are activated, and frozen. And in liquid, both IBM and EBM are frozen. But the intermediate state, rubbery state, जहाँ पर कि IBM is segmental motion is allowed, and external Brownian movement, molecular motion is frozen. That is state is called as the rubbery state. अब अगर ये states clear हैं, then in next class we'll move towards the crystalline and amorphous states. अभी तुम लोगों ने क्या पढ़ा? केवल states of aggregation, solid, liquid और rubbery state क्या होते हैं. इसके बाद फिर इसमें आएंगे crystalline और amorphous. What is the amorphous nature and crystalline nature? कैसे आप amorphous और crystalline nature को define करोगे? Then we'll move towards the glass transition टेम्परेचर, क्योंकि उससे पहले जो है वो आपको समझ नहीं आएगा कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में कैसे जो है ट्रांजिशन हो गया फेजेस, एक फेज से दूसरे फेज में सब्सटेंस का ट्रांजिशन हो गया. सो आई एम गोइंग टू क्लोज द लेक्चर टुडे बिकॉज इट इज टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास. सो ओवर फॉर टुडे. Thank you, ma'am.